Good morning, everyone. I am Rohit Gupta, working as assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management in Applied Science Department. I am teaching you probability and statistics. Today's topic is standard normal distribution and its properties and some examples. Properties of normal distribution. Standard normal distribution, mean, variance, and properties of standard normal distribution. Properties of normal distribution. If any function y equal to f of x, y equal to f of x is drawn, means x is normally distributed with n, normally distributed with mu and sigma 1 square and sigma 2 square, then sigma 1 square graph is below this one. This is the sigma 2 graph and this one is sigma 1 graph. Okay, this is normal distribution graph. If sigma 1 greater than sigma 2, then graph have sigma 1 in this one, sigma 1 is greater than sigma 2 and graph have maximum value at x equals to mu. As you seen here, this is the maximum value of this graph at x equals to mu point, and this is the maximum value of graph 2 at x equals to mu. If sigma is large, then curve to be flat, means if sigma is large, then this curve is said to be flat. If sigma is small, then curve is peaked. Understood? Now we will discuss standard normal distribution. As we know, uh, probability density function of a normal distribution f of x equals to 1 upon root 2 pi sigma e की power minus half x minus mu by sigma का whole square. Let x minus mu upon sigma is equals to z. If x equals to mu, then z equals to 0. We call z as normal variate and we write z is normally distributed with mean 0 and variance 1. PDF of standard normal distribution. As you know, I have put here, taken x minus mu upon sigma equals to z and put that one, and sigma equals to 1. So 1 upon root 2 pi, sigma की value 1, then e की power minus z square. I have put sigma equals to 1, then 1 upon root 2 pi, e की power minus half, e की power minus 1 by 2, x minus mu upon sigma की value z, then minus z square by 2. And z lies between minus infinity to infinity, because x lies between minus infinity to infinity. If I put x equal to minus infinity, then z equal to minus infinity. If I put x equal to infinity, then z equals to plus infinity. The corresponding distribution function phi of z is given, means this is a distribution function. PDF of standard normal distribution is as another thing, probability of z is less or equals to z is equal to minus infinity to z phi of z dz 1 upon root 2 pi. If I put the value of phi u, then phi u equal to 1 upon root 2 pi e to power minus u square by 2 into d, that is minus infinity to infinity, minus infinity to z. Properties of distribution. If I'm having, this is a standard normal distribution curve. If this is a normal distribution curve, as you seeing here, this curve is symmetric about y-axis. This is symmetric about y-axis, means इसका मतलब ये कि जैसा नेगेटिव एक्सिस में, नेगेटिव डायरेक्शन में x की नेगेटिव वैल्यूज पे कर्व होगा, वैसा ही कर्व पॉजिटिव वैल्यू पे कर्व होगा. सेकंड थिंग, अगर मैंने लिया एरिया, इस टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है g1, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है. दैट मींस अगर ये टोटल 1 है और ये दो पार्ट सेम है, तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ दिस वन एंड दिस वन विल बी सेम. देन तो इस आधे पार्ट का पॉजिटिव डायरेक्शन का एरिया कितना होगा 0.5 और नेगेटिव डायरेक्शन का 0.5. अंडरस्टूड है? ओके, वी विल डिस्कस. तो फाई ऑफ माइनस जेड, अगर मुझे फाई ऑफ माइनस जेड निकालना है तो क्या होगा 1 माइनस फाई ऑफ जेड. अच्छा, टोटल तो 1 है बिकॉज फाई ऑफ माइनस जेड. अगर मुझे फाई माइनस जेड यहाँ पे इस पॉइंट पर नेगेटिव पे निकालना है, तो नेगेटिव पे अगर निकालना है तो पॉजिटिव पे क्या है, तो पूरा की वैल्यू क्या है 1, और 1 माइनस फाई ऑफ जेड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा. अंडरस्टूड है? अगर मैंने निकाला तो फाई ऑफ माइनस जेड क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज लेस और इक्वल टू माइनस जेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर और इक्वल टू जेड इक्वल होगा बिकॉज इट इज सिमेट्रिक. फाई ऑफ माइनस जेड को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज लेस और इक्वल टू जेड.
1 minus phi of z. X is, this is a normal distribution curve, तो maximum value that is 1 and 1 पे maximum होगा और that is sigma, तो x equals to mu, 0 पे वैल्यू होगी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो 1 होगी। अंडरस्टूड, मींस x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो क्या होगी 1, बिकॉज़ सिग्मा की वैल्यू क्या है 1, उस टोटल का एरिया अंडर एरिया क्या होगा 1, मींस पॉजिटिव डायरेक्शन का क्या, पॉजिटिव का साइड का एरिया कितना होगा 0.5 और नेगेटिव साइड का 0.5, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ z मींस इस फंक्शन का एक्सपेक्टेशन कितना होगा 0, वेरिएंस कितना होगा 1। नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल, normal probability integral, this is a normal distribution curve, this is symmetric about y-axis, just look at this one, this is x equals to mu line, if I've taken x equal to mu plus sigma, so this is a line x equal to mu plus sigma, okay, x equal to mu plus sigma and x equal to mu minus sigma, as we have z equal to x minus mu upon sigma, if I put x equal to z equal to x minus mu upon sigma, so mu minus sigma upon sigma minus mu, so mu cancel out, that means z equals to -1, understood? X minus mu minus mu, so mu cancel out, remaining minus sigma upon sigma, that is -1, so z equals to -1, this is z equals to -1 line, and this is z equals to 0 line, because x equal to mu, तो x minus mu upon sigma पे जब x की वैल्यू mu पुट करेंगे तो mu minus mu 0, this is z equal to 0 line, and this is z equal to 1 line. So now we will do another question, that is normal distribution, standard normal distribution का mean क्या होता है 0, variance क्या होता है 1, understood है? Okay, why we are converting into a standard normal distribution, just a question, मींस हम इसे हमेशा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, बिकॉज हमारे पास जो टेबल है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल गिवन होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल नहीं होती, अंडरस्टूड है? तो पहले हम किसमें कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और x या x म्यू सिग्मा की वैल्यू पुट करके z की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उससे वैल्यू निकाल लेंगे, अंडरस्टूड है? नाउ वी विल सी अनदर एग्जांपल, द रैंडम वेरिएबल x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 9 and standard deviation 3. Now we want to find three things. First one, probability of x greater or equals to 15. Second thing, probability of x greater than less or equals to 15. Next thing, probability of x greater or equals to 0 less or equals to 9. Okay, first thing, पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम होगा कि मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कन्वर्ट करोगे, आप z की वैल्यू निकालोगे। अच्छा, z इक्वल टू होता क्या है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, मींस आपको x की वैल्यू रखना है और प्रोबेबिलिटी किस पे निकालनी है 15 पे, तो x की वैल्यू 15 हो गई, म्यू कितना गिवन है 9, मींस वेरिएंस इज अ मीन इज सॉरी मीन की वैल्यू 9 है, तो मीन को हम किससे डिनोट करते हैं म्यू से, तो वैल्यू रखती है 15 minus 9 by 3, तो 15 3 is a standard deviation, because we know that variance standard deviation is a root of variance, तो इस सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, because सिग्मा स्क्वायर तो वेरिएंस होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है सिग्मा। हमने वैल्यू पुट कर दी 15 minus 9 कितना हुआ 6 by 3 2 आ गया, तो मुझे किस पे वैल्यू निकालनी है Z2 पे, बट हम यहाँ पहले पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ Z ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2। अच्छा, ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इस ग्राफ पे देखूं, अगर लेट अस अज्यूम दैट दिस लाइन इज z इक्वल्स टू 2 लाइन, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज z इक्वल्स टू 2 लाइन, इफ z इक्वल्स टू 2 लाइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2, दैट मींस दिस इज z इक्वल्स टू 2 लाइन, तो ग्रेटर देन 2 कहां से होगा, दिस इज 2 टू इंफिनिटी, मींस 3 4 5 6 टेंडिंग टू इंफिनिटी, मींस 2 टू इंफिनिटी के लिए जो एरिया अंडर द कर्व होगा वही निकालना होगा मुझे। ओके, तो अगर एक चीज बताओ, ये पूरे का एरिया का वैल्यू कितना होता है
1, दैट मीन्स आप हाफ का कितना होगा, हाफ का कितना होगा और इस वाले का, दैट इज 0.5। अगर मैंने 0.5 से अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो मैं इस 0.5 से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचेगा, ये एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, दिस इज 0 से 2, कैसे निकाल दिया, because 0.5 minus probability of z greater or equals to 0 to 2. Okay, now we will let us assume that is probability of z equals to 2 पे वैल्यू क्या होगी 0.4772, let us assume that only. okay, तो 0.5 से इतना सब्ट्रैक्ट कीजिए 0.0228। अब हम देखेंगे कि ये 0.4772 कैसे आया, ठीक है। ओके, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, this is your distribution table. Now look at this table first. This is area under the standard normal curve 0 to z. Okay, first look at this one. This is your standard normal distribution table. This curve is symmetric about y-axis. That means पॉजिटिव साइड में जितना कर्व होगा उतना ही नेगेटिव साइड में सेम एज। तो पॉजिटिव वाले की वैल्यू कितनी होगी 0.5 और नेगेटिव वाले का एरिया कितना होगा 0.5। अंडरस्टूड, बिकॉज़ टोटल एरिया कितना है 1। अच्छा, अब मुझे z की वैल्यू चाहिए। z की वैल्यू अगर 0 पे निकालनी हो तो 0.0 पे होती, अगर 0.01 पे निकालनी होती 0.0 एंड करस्पॉन्डिंग उसका वर्टिकल कॉलम देखो। पहले 0, जैसे मुझे 1 पे निकालनी है तो मैंने 1 देखा, तो 1 के करस्पॉन्ड, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल रो, दिस इज अ रो, हमने 1 के करस्पॉन्डिंग रो देखी। अब मुझे 1.05 पे निकालनी है। अगर 1.05 के निकालनी है तो 5 देखोगे कहाँ है, 1.05 पे वैल्यू होगी, इन दोनों के जो मिडिल पॉइंट होगा ये जो क्रॉस करेगा दैट इज 0.3531, दिस इज योर वैल्यू। अंडरस्टूड है, तो 3.35 कहाँ गया 3.35 1.05 पे ये आपका वैल्यू हो जाएगा। अंडरस्टूड है, ओके। नाउ वी विल डिस्कस, अब हमें क्या करना होगा, जस्ट अ मिनट। अब हमें क्या करना होगा, अगर मुझे किस में वैल्यू चाहिए 0 से 2 के बीच में। अच्छा, 0 से 2 के बीच में चाहिए तो जो भी वैल्यू होती है, जैसे मुझे 0 से 1 के बीच में चाहिए तो मुझे 1 की वैल्यू रखनी है। अगर मुझे 0 से 2 के बीच में चाहिए दैट मींस मुझे वैल्यू किसकी देखनी होगी z इक्वल टू 2 पे। तो 2.0, 2 का मतलब 2.0, तो 2.0 पे वैल्यू किसकी होगी 0.4772, हमने यही वैल्यू यूज करी थी 0.4772, 4772 पे ये वैल्यू आंसर आ गया 0 पॉइंट, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 15 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 0.0228। अब सबसे पहले काम क्या करोगे, फर्स्ट यू कन्वर्ट x को किसमें कन्वर्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को किसमें करोगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के बाद आप एरिया देखोगे पॉजिटिव का है कि नेगेटिव का, फिर उससे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखोगे और वहां से उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। ओके, नेक्स्ट वाला करते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस आर इक्वल टू 15। अच्छा, आप बताओ, अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक, अगर ग्रेटर देन 15 के लिए मान लेते ये वाला कर्व होता, तो लेस देन 15 के लिए क्या होगा 15, 0 से 15 वाला भी आएगा और निगेटिव वाला भी आएगा। और इस पूरे की, तो आप बताओ ये वाला मेरे पास है, टोटल कितना है 1। अगर मैं इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूं ग्रेटर देन 15 को तो कितना मिल जाएगा मुझे लेस देन 15। तो दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0.9772। अच्छा, एक चीज बताओ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 लेस आर इक्वल्स टू 9। मींस मुझे अगर x पे वैल्यू गिवन है तो पहले मुझे किस पे निकालना होगा z पे। अच्छा, z पे कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो z की वैल्यू क्या होती है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अच्छा, तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे, म्यू की वैल्यू कितनी है 9, सिग्मा कितनी है 3, तो 0 माइनस 9 अपॉन 3 कितना आएगा -9 अपॉन 3, दैट इज -3। अब फिर इसके बाद 9 पुट करोगे तो 9 माइनस 9 0, यानी कि 0, -3 से 0 के बीच में। अच्छा, एक चीज बताना, दिस इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो अगर ये कर्व है, अगर मैंने कहा दिस इज सिमेट्रिक अबाउट पाई एक्सिस, मुझे किसकी वैल्यू लिखनी थी -3 से 0। अब मान लेट अस अज्यूम दैट दिस इज -3, तो -3 से 0 अगर ये कर्व है तो वही एरिया कितना होगा 0 से 3 के बीच का, बिकॉज इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस।
तो G-3 से 0 के बीच का जो एरिया होगा वही एरिया कितना होगा 0 से 3। तो मैंने इसको ये रख दिया, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ Z इक्वल टू 0 to 3। अब मुझे वैल्यू किस पे चाहिए होगी, Z इक्वल टू 3 पे। अब हम जाएंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 3 कहाँ मिलेगा, 3 का मतलब 3.0, दिस इज 3.0। 3 पे वैल्यू कितनी है 0.4987। तो हमने देख लिया, वैल्यू रखी 0.4987, दिस इज योर आंसर। ओके, ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो ये किसके लिए यूज होता है, पॉजिटिव साइड के लिए। अगर नेगेटिव साइड को निकालना है तो सिमेट्रिक से निकाल लेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन, वहां से आपको समझ आएगा। Another example, there are 500 students taking a mathematics course in engineering college. Okay, the probability for any students to need a particular book from the college library on any day is 0.07, means okay, means there are only in an engineering college there are 500 students and they need a particular of books, and that probability of that books need to be in any day is 0.07. Understood? Okay, how many copies of the, means at sometimes it can also written how many at minimum copies of the book should be kept in the library, so that the probability by probability may be greater than 0.95, that none of the students copy uh, from the library has to go back disappointed. Assume normal distribution. This is the normal distribution. Okay, in previous class, in first unit, in discrete distribution, discrete random variable, in Poisson distribution case, I have discussed if n is large and p is very small, then mu equals to np. We have discussed that. Then mu equals to np. तो n की वैल्यू कितनी की है 500 एंड p की वैल्यू कितनी है 0.07। तो आंसर कितना आ जाएगा 35। बिकॉज अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के देन वी विल रिक्वायर टू पैरामीटर्स, वन इज म्यू एंड अनदर इज सिग्मा। इफ वी रिक्वायर्ड म्यू तो म्यू कैसे निकालेंगे n इनटू p से। n की वैल्यू 500 है, p की वैल्यू 0.07 है, तो आंसर कितना आएगा 35। अगर हमने डिस्कस किया था सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस, दैट इज इफ n इज ग्रेटर p इज लेस तो np की होता है। np की वैल्यू 35, q की वैल्यू 1 minus 0.07 that is 0.93, तो 32.55। अंडरस्टूड है? अच्छा एक चीज बताओ, सिग्मा की वैल्यू क्या होगी 5.7, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन z1, दैट मींस इसका परसेंटेज कितना है 0.95 गिवन, 0.95। अगर कुछ चीज को 95.95, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन z1 ग्रेटर देन z। अगर पूरे का एरिया j1 है, आप बताओ ये पॉजिटिव साइड में होगा कि निगेटिव साइड में। बिकॉज अगर निगेटिव साइड में होता तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती 0.5 से बड़ी तो नहीं हो सकती थी, दैट मींस इट मस्ट बी ऑन पॉजिटिव साइड। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0 लेस देन z1 प्लस मींस z1 जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। मान लेते हैं यहाँ पे है, तो वो क्यों नहीं होगी निगेटिव साइड में, क्योंकि निगेटिव का टोटल एरिया कितना है 0.5। जब टोटल में आएंगे और ये वैल्यू कितनी है 0.95 से ज्यादा, इसका मतलब पॉजिटिव साइड में होगा। तो इसको हम लिख दिया माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू z1। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में कितनी वैल्यू होती है 0.5, और 0 से z1 की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ z1 आ जाएगा। 0 से z1 इज ग्रेटर देन 0.45। अच्छा, अगर मेरे पास z1 की वैल्यू होती तो प्रोबेबिलिटी हम निकालते थे। अगर z1 की वैल्यू 3 थी तो 0 से 3 के बीच में हम एरिया निकालते थे, एरिया उससे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। अगर मेरे पास वैल्यू है तो हम z1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब अगर हमारे पास कितनी वैल्यू है ये 0.45, मींस हमें 0.45 के अप्रॉक्स कोई वैल्यू देखनी होगी। अच्छा, 0.45 वैल्यू कहाँ पे होगा 0.45, देखो ये 0.4505 के अप्रॉक्स ही है, दैट मींस। और ये किसकी वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग रो देखो, रो देखा तो दैट इज 1.6 एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम दैट इज 1.65। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, तो z1 की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम, दैट इज 1.65। अंडरस्टूड है? एज वी नो दैट
गिवन टेबल से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से निकालो, z1 की वैल्यू 1.65 से ग्रेटर होगी। एज वी नो दैट z1 इज इक्वल टू x स्टार, z की वैल्यू क्या होती है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ओके, तो z1 की वैल्यू आई हैव अज्यूम्ड दैट इज x स्टार माइनस 35, म्यू की वैल्यू 35 है, सिग्मा की वैल्यू 5.7 है, ग्रेटर देन 1.65, x स्टार की वैल्यू क्या है 44.4। दिस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट टू 45 because books number of books on an integer value ना, कोई ऐसा तो नहीं हो सकती कि फ्रैक्शंस में हो सकती है। दैट मींस मैक्सिमम बुक्स, हाउ मेनी मिनिमम बुक्स आर रिक्वायर्ड 45, therefore library should be kept at least 45 copies in a distribution which is exactly normal। another question, okay, पहले फिर से देखते हैं इसको, अगर किसी को डाउट है, if any student have doubt then please contact me। in a distribution which is exactly normal, 12%, which is exactly normal, 12% of items are under 30 and 85% are items under 60. Find mean and standard deviation. Means any distribution is given, that is x is normally distributed with mu and sigma square, then there is a probability that x less than 60 will be x less than 60 is equals to 85%। 85% को हम प्रोबेबिलिटी में कैसे चेंज करेंगे, 80.85 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 30 पे क्या हो जाएगा 0.12% को हम प्रोबेबिलिटी में चेंज करेंगे तो 0.12 हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर x लेस देन 60 85.85 है तो ग्रेटर देन 60 कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.85 तो 0.15, तो ग्रेटर देन 60 पे निकाल लिया ये वैल्यू। अगर लेस देन 30 है, लेट्स अज्यूम दैट इफ लेस देन 30 है, ठीक है, तो x लेस देन x इक्वल टू 60 किधर राइट करेगा, राइट साइड पे, तो x इक्वल टू म्यू, तो z की वैल्यू 30 पे भी निकाल लो और 60 पे, z इक्वल टू 0 टू z1। अच्छा आप बताओ, अगर x लेस देन 30 है, x लेस देन 30 का मतलब 0 टू 30 के बीच में, x लेस देन 30 का मतलब 0 से 30 के बीच में। अच्छा 0.12 है तो निगेटिव साइड वाला तो काउंट नहीं होगा, बिकॉज अगर निगेटिव साइड वाला काउंट होगा तो पूरा पूरा 0.5 काउंट हो जाएगा। तो दैट मींस जो 30 है वो किधर होगा 0.5, अरे x लेस देन 30 इसकी वैल्यू कितनी है 0.12 मींस 0.5 से कम है, मींस ये नेगेटिव साइड पे ही होगा। पॉजिटिव साइड में अगर गया x लेस देन 30 तो वो क्या होता 0.5 से ज्यादा जाता, इसका मतलब ये लेफ्ट पे होगा ऑलवेज, मींस z इक्वल टू आप माइनस z1 इसे अज्यूम कर लो। अंडरस्टूड है? ओके तो x इक्वल टू 30 पे ले लिया तो 30 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसको माइनस z1 ले लो बिकॉज ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से कम, सॉरी 0.5 से कम है। अगर x लेस देन 60 पे क्या होगा, सॉरी x इक्वल टू 60 पे क्या 60 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसकी वैल्यू z2 है, तो 0 से z1। अच्छा आप बताओ, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो अगर लेस देन 30 पे निकालना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5 माइनस 0 टू 30, तो 0.38 लिया, 0.5 माइनस 1 माइनस 0.12 तो 0.38 आ गया। 0 से z1 z2 के बीच में कितना हो गया 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0.35 आ गया। अच्छा 0.38 वैल्यू किसकी होती है, अब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखेंगे। दिस इज योर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 0.138, सॉरी 0.38 and 0.35, 0.38, this is your 0.37, 0.3810, that means this is 1.18 and 0.37, this is your 1.13, दिस इज 1.35 के लिए कितना होगा 1.03 और 0.38 के लिए कितना हो जाएगा 1.17। अंडरस्टूड है? ओके तो हमने वैल्यू z1 की वैल्यू क्या रखी 30 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, टू इक्वेशन टू अननोन सॉल्व करेंगे, सिग्मा इक्वल्स टू 13.56
and mu equals to 45.939 in an examination. Another question, in an examination the candidates are awarded. आपके एग्जाम में एमडीयू के जो मेन एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% आता है, दैट इज विल बी 15 मार्क्स. ओके, तो इंपॉर्टेंट है और इजी भी है. In an examination, the candidate are awarded from the following grades depending on the marks scored by them. Distinction, if distinction 80% से above है, then distinction फर्स्ट क्लास के लिए होता है क्या होता है 60 ग्रेटर देन 60%, लेस देन 80%. सेकंड क्लास के लिए ग्रेटर देन 45%, लेस देन 60%. थर्ड के लिए ग्रेटर देन 30% आर इक्वल टू 30%, लेस देन 45%. सॉरी, फेल के लिए लेस देन 30%. It was found that 8% students are fail and 8% have distinction. Means 8% fail. Fail कब होंगे? Probability of x less than 30 के लिए क्या लिखोगे? 0.8%. That means 0.08. अच्छा, less than कितनी probability है? 0.08. 0.08 मीन दिस इज ऑन नेगेटिव साइड होगा बिकॉज प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम है. और ये 8% क्या है? डिस्टिंक्शन वाले. दैट मींस x ग्रेटर देन 80 पे कितना होना चाहिए? तो ये 0.08 हो जाएगा. आप कर लेना. ओके, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक बार फिर से देख लो बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. दिस इज जो भी वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव साइड के लिए गिवन होती है. जैसे 0 से 1, 0 से 2. अगर 0 से 1 है तो हमें z इक्वल टू 1 पे वैल्यू देखनी है, तो 1.0 पे 0.3413. इफ 0 टू 1.5 तो 1.5, तो 1.5 पे देख लो. अगर 0 टू 1.56 तो 1.5 की रो देखो और 6 के करस्पॉन्डिंग कॉलम, तो 1.56 पे वैल्यू क्या होगी? 0.4406. अंडरस्टूड है? ओके ओके, थैंक यू सो मच.